Hello students, today we will start our new lesson chapter 6 of Moments book, that is the Weathering the Storm in Erasmus. This chapter narrates the adventures of a young man Prashant who was marooned on a rooftop for nights following a dreadful storm. Prashant had gone to coastal town of Erasmus in Odisha to spend a day with his friend 7 years after his mother's death. It was the fateful day the storm lashed in full fury with heavy wind and rain. Trees were uprooted and water entered neck deep inside the friend's house. For 2 days, everyone took refuge on the roof till the situation calmed down a bit. Although everyone tried to pursue Prashant to stay for a few more days, as the situation had not been fully settled, he was determined to move ahead. Using a stick to guide him, he waded his way through the water to his village, 18 kilometers away. Once there, he sought assistance of Red Cross to find out the whereabouts of his family. Slowly, he found each of them. This is the summary of your chapter, short summary. After that, I am explaining your lesson. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For the 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned. Marooned क्या होता है? Protected and isolated. अपने आप को protect किया. On the roof of a house. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? We will know about his family in this chapter. On 27th of October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasmus, a small town in coastal Odisha, which was 18 kilometers away from his house. Once after his 7 years mother's death, Prashant went to headquarters of Erasmus, that is a small town in coastal Odisha, and which was 18 kilometers far away from his village. He wanted to spend a day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm, menacing होता है dangerous and harmful storm, quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and anger that Prashant had never witnessed before. Witnessed होता है saw, कि प्रशांत ने ऐसा सीन स्टॉर्म का, विंड का पहले कभी नहीं देखा था. आफ्टर दैट हैवी एंड इंसेसेंट रेन. इंसेसेंट होता है कंटिन्यूस रेन. इसके बाद बहुत भारी और लगातार बारिश शुरू हो गई. फिर द डार्कनेस. एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड. इतनी तेज हवाएं चल रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि जो पुराने पेड़ थे वो भी अपरूट हो गई, उखड़ गए ज़मीन से और क्रैश्ड टू द अर्थ पर गिर गए. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. स्विफ्टली होता है फास्ट, बहुत ही तेज़ी से. तेज हवा के कारण जो घर हैं और जो लोग हैं वो बहते जा रहे हैं. दे वर वॉश्ड अवे. द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house. और जो पानी है उसके घर, फ्रेंड के घर में पानी भर गया सारा, नेक डीप, इतना डीप कि नेक तक. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार. मोर्टार होता है मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर, सीमेंट का जो मिक्सचर होता है. जो घर जो बना हुआ था वो पक्का हाउस था. सो इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवेस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी. विंड्स की जो विंड की स्पीड थी वो कितनी थी? 350 किलोमीटर पर आवर. और उनका जो घर था दैट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव
the wind's velocity of 350 kilometers per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses. Cold terror क्या है? ठंड का आतंक, कि पानी घर में है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ कंटिन्यू बारिश हो रही है विद द, और जो दो पेड़ हैं वो भी गिर गए हैं, उनके घर के उसके अपरूट हो गए हैं एंड और उनके घर के ऊपर गिर गए हैं. सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और जिसके कारण उनकी रूफ और वॉल्स को डैमेज हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं. The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. जो destruction है covered by cracks, crazed destruction होता है covered by cracks, जिसमें crack हो जाते हैं. wrought means done, किसके द्वारा किया गया है? साइक्लोन के द्वारा. एंड सर्ज मतलब मूविंग अहेड, आगे बढ़ रहा है, ऑफ द ओशन, आगे नेक्स्ट 36 आवर्स तक, कि आगे पानी के बढ़ने के आसार हैं बहुत ही ज़्यादा जो साइक्लोन है. ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रेड्यूस्ड, जो विंड की स्पीड है वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक कुछ कम हो गई. टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, कि पानी जो उनके घर में भर गया है उससे बचने के लिए प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली ने छत पे जाकर शरण ले ली, छत पे जाकर रहने लगे. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डिवेस्टेशन. उसने जो डिस्ट्रक्शन की जो पहली झलक देखी, आज तक उसने अपने लाइफ में नहीं देखी थी, जो उसने उस दिन फेस किया. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी वहाँ तक उसको दूर दूर तक सिर्फ ब्राउन वाटर दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था. Only fractured cement houses still stood in few places. कुछ जगहों पर सिर्फ जो सीमेंट के बने हुए घर थे वही रुके हुए थे. Blotted एनिमल कार्केसेस होते हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, एंड ह्यूमन कॉर्पसेस, और ह्यूमन डेड बॉडीज़ को कॉर्पसेस कहते हैं. दे वर फ्लोटिंग इन एवरी डायरेक्शन वेयर द प्रशांत वॉज सीइंग देयर वॉज वर कार्केसेस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन कॉर्पसेस ऑल राउंड. even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. 2 coconut trees were fallen on their Prashant friend's family house. This was a blessing in disguise. This was a good thing in secret. कि ये तो बहुत अच्छी बात थी उनके लिए, क्योंकि खाने के लिए और तो कुछ नहीं था. तो जो कोकोनट के ट्रीज़ उनके छत पर गिरे थे, उन्हीं कोकोनट से वो अपना गुजारा चला रहे थे. बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड. कि कुछ दिनों तक वो भूख से बच जाएंगे उन कोकोनट के ट्रीज से. फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत set huddled with his friend's family in the open on the rooftop. huddled होता है gathers, कि उनके साथ वो मिलकर कहाँ बैठा रहा, उनकी छत पर. They froze in cold and incessant rain. और ठंड थी, इतनी ठंड लग रही है उनको क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है. बारिश के कारण जो मौसम है वो बहुत ठंडा हो रहा है. The rain water washed away प्रशांत टीयर्स. जो रेन वाटर है, प्रशांत ही वॉज वीपिंग एंड रेन वाटर वॉज वॉशिंग हिज टीयर्स बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन. कि क्या उसकी फैमिली इतने सुपर साइक्लोन की जो फ्यूरी है क्या उसके कारण बच पाई होगी. Was he to be bereaved once again? क्या वो उनसे दोबारा मिल सकेगा. 2 days later, after 2 days, which seemed to प्रशांत like 2 years, जो 2 दिन उसने उनके फ्रेंड के घर पर बिताए वो उसको 2 years के बराबर लग रहे थे. Because he was taking worry about his family
After that the rain ceased. The rain stopped after 2 days and rain water slowly began to recede. और जो बारिश का पानी है वो भी धीरे धीरे कम हो गया. Prashant was determined to seek out his family. Now without getting any delay, he wanted to meet his family, so he decided to move away from there. But the situation was very dangerous. But the situation was not good. And his friend's family pleaded, and his friend's family requested Prashant to stay few more days, but Prashant denied. प्रशांत ने मना कर दिया, वो नहीं रुक सकता, because he was worried about his family. He equipped himself. He equipped क्या होता है? अपने आप को कवर कर लेना, सुसज्जित कर लेना. Himself with a long sturdy stick. उसने अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक स्टिक ले ली, सॉलिड स्टिक. स्टडी मीन्स सॉलिड स्टिक. देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन मीन जर्नी बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर. मतलब जहाँ देखो बाढ़ का पानी है, फिर भी उसने अपने आप को अपने गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. ये वो जर्नी है वो कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में. He constantly had to use his stick to locate the road. पहले वो स्टिक रख के अपने रोड को लोकेट कर लेता है, उसके बाद वो अपना कदम उठाता. To determine where the water was most shallow. Shallow मतलब जहाँ पे little depth है, little कम गहरा है. At places it was waist deep. और जहाँ waist तक deep water होता, his progress was slow. At several points he lost the road. और बहुत जगह पर तो वो अपना रास्ता खो बैठा. देन ही हैड टू स्विम. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड. ही गॉट रिलीव्ड वेयर ही फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. अब उसको उसके गाँव के 2 पर्सन मिल जाते हैं तो उसको थोड़ी तसल्ली होती है, फिर वो तीनों अपने गाँव के लिए निकल पड़ते हैं. As they waded through the waters, waded through होते हैं came out from water. जैसे ही वो पानी से बाहर निकल रहे हैं, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जैसे जैसे वो देख रहे हैं उनका जो सीन है वो बहुत ही gruesome, grim, serious होता जा रहा है. They had to push away many human bodies. अपना रास्ता बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी human bodies को फेस किया, कवर किया, पुश किया, धक्के दिए. मैन, विमेन, चिल्ड्रन एंड कार्केसेस. कार्केसेस होते हैं डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ऑफ डॉग्स, गोट्स, कैटल. एंड द करंट स्वैप्ड अगेंस्ट देम. करंट स्वैप्ड होता है वर्तमान में बहना. अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड. जैसे जैसे वो पानी में बह रहे हैं, देख रहे हैं वो. इन एवरी विलेज दैट दे पोस्ट दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग. जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं सिर्फ उनको एक आध घर ही कोई खड़ा नज़र आ रहा है, बाकी सारे जो घर हैं वो टूट चुके हैं, बह चुके हैं. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. जो ये सीन देखकर जो प्रशांत है वो बहुत तेज तेज रो रहा है. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ. कैटास्ट्रॉफ होता है डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, कि इस विपत्ति को उसका परिवार सहन नहीं कर पाया होगा. इवेंचुअली After that, Prashant reached his village Kalikuda. His heart went cold. अब वो डर के मारे ठंडा हो रहा है. Where their homes once stood, जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था, there were only remnants. Remnants होता है remains, जो अवशेष बचे हैं उसकी छत पर, छत के अवशेष बचे हैं. Some of their belongings, उनसे जो related सामान था, were caught, mangled, destroy हो गया, and twisted in the, और कहाँ पर लटका हुआ है, इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर. व्हेन आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस सोसाइटी टू फाइंड अबाउट हिज फैमिली बिलोंगिंग्स. द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर. सबसे पहले जो भीड़ में वो मिलता है, किससे मिलता है? अपनी नानी जी से, मैटरनल ग्रैंड मदर से. वीक विद हंगर, शी वॉज वीक विद हंगर. शी रश्ड टू हिम. व्हेन शी सॉ हिम शी रश्ड टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच. आउटस्ट्रेच अपनी बाहें फैला लेना मिलने के लिए.
हर आईज ब्रिमिंग, आंसू आ गए। इट वॉज अ मिरेकल, चमत्कार है ये तो। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि वो तो इच्छा छोड़ चुके थे कि वो मिलेगा भी कभी प्रशांत उनसे। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, कि उसकी पूरी फैमिली उसके गिर्द गिर्द आ गई उससे मिलने के लिए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसको हग किया और रिलीफ महसूस किया। प्रशांत एंक्शसली स्कैन्ड हिज द मोटले, मोटले क्या होता है? वेरीड करेक्टर्स। बैटर्ड ग्रुप, बैटर्ड ग्रुप होता है इंजर्ड ग्रुप, जो इंजर्ड पर्सन्स थे उनसे मिला, सभी लोगों से मिला। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स, आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, मीन्स उसके सारे फैमिली मेम्बर्स रेड क्रॉस सोसाइटी में सेफ थे, सुरक्षित थे, वो सब उनसे जाकर मिला। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today. Now you have to read these 3 pages of this chapter.